बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। 77वां गणतंत्र दिवस पूरे देश में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस साल गणतंत्र दिवस का मुख्य थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष पर है। चलिए सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर अब झंडा जो है वो फहराया जा रहा है अलग अलग जगहों पर। अभी इस वक्त ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सेना का शौर्य, पराक्रम का पर्व, संविधान की शक्ति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। जो परेड चल रही है उसकी सलामी दी जा रही है और सलामी दी जा रही कर्तव्य पथ की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। आज की परेड के परेड 2IC मेजर जनरल नवराज ढिल्लों, तीसरी पीढ़ी के ऑफिसर, BSM चीफ ऑफ स्टाफ, हेडक्वार्टर्स दिल्ली एरिया, IMA देहरादून के पूर्व छात्र मेजर जनरल नवराज ढिल्लों ने सन 1991 में कमीशन प्राप्त किया। अनुशासन, जोश, पराक्रम, अद्भुत कौशल, उम्मीद की सोच से परे मानव और मशीन के कारनामे, देश की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विरासत के दर्शन अब इस भव्य परेड में, और कर्तव्य पथ पर वीरता के शिखर साक्षात हमारे सामने। पराक्रम और बहादुरी की कोई हद नहीं होती। बात जब देश की आई तो हद क्या, ये तो बेहद से भी गुजर गए। परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, PVC सेवानिवृत्त 18 ग्रेनेडियर्स। इनके साथ ऑनररी कैप्टन संजय कुमार, PVC 13 जम्मू और कश्मीर राइफल्स। इन्हीं के साथ अपने वाहन में मेजर जनरल CA पिछावाला, सेवानिवृत्त अशोक चक्र, और कर्नल D श्रीराम कुमार, अशोक चक्र। परमवीर चक्र और अशोक चक्र ताज है इन वीरों का। परमवीर चक्र युद्ध में और अशोक चक्र अन्य परिस्थितियों में असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए दिया जाता है। And now approaching the saluting base, the European Union contingent with 4 flag bearers. The EU military representation is led by Colonel Frederick Simon Spruitz. The right side gypsy, aligned alongside the second ceremonial jeep, carries the flag of the European Union, symbolizing the institutional unity of the 27 EU member states, and alongside the flag of the European Union military staff, the permanent military body within the EU's institutional framework. The left side gypsy, aligned alongside the first, carries the flags of the EU Naval Force Atlanta and the EU Naval Force Aspis. And close behind them, approaching the saluting base with dignity and shared purpose, we have, leading the mounted contingent of the Republic Day Parade 2026, resplendent in active combat uniform, mounted on magnificent gleaming steeds, the 61st Cavalry Contingent, led by Captain Ahan Kumar, the only active horse cavalry regiment in the world. And over the Kartavya Path now is Prahar formation, comprising 1 Dhruv advanced light helicopter carrying the Operation Sindoor flag of the Indian Army, along with Rudra ALH WSI of the Indian Army and ALH Mark 4 of the Indian Air Force. Formation led by Colonel Vijay Pratap, Sena Medal. ALH WSI flown by Lieutenant Colonel Ahmed Pasha and ALH Mark 4 flown by Group Captain Arunav Pal. Prahar formation led today by Colonel Vijay Pratap, Sena Medal.
A lovely clear blue sky, perfect foil for our flying machines. And here, going past the saluting base, led by Lieutenant Arjun Kashyap of 6 Lancers, the High Mobility Reconnaissance Vehicle, HMRV, India's first indigenously designed armored light specialist vehicle. Equipped with battlefield surveillance radars, capable of detecting men, vehicles and low-flying helicopters along with drones to cover radar-blind zones. And now flying is the Garud formation, a powerful display of indomitable spirit of our Apache attack helicopters, known for its unmatched power and lethality across the world. 2 Apache helicopters flown by Colonel Vikrant Sharma, Sena Medal, along with Lieutenant Colonel Manoj Saraswat. Lieutenant Colonel Sudeep with Major Aditya flying the 2nd Apache. वायु विचरण करते वायु योद्धाओं के साथ साथ सलामी मंच के सामने भारत की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन करता हुआ T-90 टैंक और साथ में मेन बैटल टैंक अर्जुन। 77 बख्तरबंद रेजिमेंट के कैप्टन विपनजोत सिंह विर्क की कमान में T-90 भीष्म टैंक का मशीनीकृत कॉलम अपनी गर्जना से वातावरण को गुंजायमान कर रहा है। और उसके ठीक बाईं ओर है 75 आर्म्ड रेजिमेंट के मेजर हितेश मेहता की कमान में अर्जुन MK1 मुख्य युद्धक टैंक। स्वदेशी रूप से विकसित है ये प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भरता और युद्ध भूमि तत्परता के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता हुआ। उसके ठीक पीछे BMP-2 और नाग मिसाइल प्रणाली एक साथ शान से आगे बढ़ते हुए भारतीय सेना की मशीनीकृत ताकत के 2 शक्तिशाली प्रतीक हैं ये। 2 गार्ड्स के कैप्टन अक्षय कुमार बाली के नेतृत्व में द मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट का BMP-2 कॉलम आगे बढ़ रहा है और साथ में है नाग मिसाइल सिस्टम MK2 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट शशांक शर्मा के नेतृत्व में। नाग मिसाइल सिस्टम रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है 17 मेघ हर मैदान फतेह, उसे दर्शाता हुआ। दुनिया हिंदुस्तान की ताकत जो है वो देख रही है, संविधान की शक्ति, राष्ट्रभक्ति की तस्वीर आप देख रहे हैं और इस परेड की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं हरे और Dwansak light strike vehicle LSVs. First LSV represents the firepower component. The second LSV abreast signifies the surveillance component, and the third LSV behind is anti-tank component. साल गणतंत्र दिवस का मुख्य थीम जो है वो वंदे मातरम है और वंदे मातरम के 150 वर्ष जो है वो मनाए जा रहे हैं और इसी थीम पर ये पूरी परेड आपको नजर आ रही है। मुख्य अतिथि के तौर पर आपने अभी जो तस्वीर देखी थी उसमें यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन शामिल हो रहे हैं। उनकी तस्वीर आपने देखिए जब सलामी लेती है और हर एक जो पैटर्न है, हर एक टैंक है, जो भारत की सैन्य शक्ति है, उसके बारे में जानकारी देते हुए उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। और मानव रहित जमीनी वाहन माउंटेड UGV इसकी कमान संभाली है गोरखा राइफल्स के कैप्टन विकास यादव ने। MSME और स्टार्टअप द्वारा घरेलू उच्च तकनीक का इस्तेमाल
इन वाहनों को भारी हथियारों के साथ लोड किया जा सकता है। शक्तिबाण और दिव्यास्त्र वाहन भारत की नई पीढ़ी के मानव रहित वॉरहेड शस्त्रागार को शक्तिबाण और दिव्यास्त्र वाहनों के माध्यम से देखा जा सकता है। शक्तिबाण वाहन की कमान लेफ्टिनेंट रमन मिश्रा ने संभाली है और दिव्यास्त्र वाहन की कमान सूबेदार किरण मेदर के हाथ। ये दिव्यास्त्र वाहन और शक्तिबाण विशेषीकृत हाई मोबिलिटी व्हीकल्स पर स्थापित हैं। निगरानी लक्ष्यकरण की एकीकृत अवधारणा पर डिजाइन किए गए ये प्लेटफॉर्म। And now rolling together along Kartavya Path, two powerful symbols of India's indigenous artillery strength, AMOG, the Advanced Towed Artillery Gun System, ATAGS, and the Dhanush gun system, reflecting the spirit of Atmanirbhar Bharat. Led by Captain Natarajan Siva of 74 Field Regiment, the AMOG has a 155mm 52 caliber artillery gun. And led by Captain Gaurav Pandey of the 871 Medium Regiment, the Dhanush gun system, capable of firing a shell within 12 seconds and swiftly changing position to evade enemy counteraction. And now, going past the saluting base, presenting a formidable combination of a long-range precision and overwhelming firepower, the Suryastra and the BrahMos weapon system. Lieutenant Mehak Bhati is leading the Suryastra Universal Rocket Launcher System. और इस बीच आपको एक खबर बता देते हैं। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। बीएसएफ के जाबाज जवानों ने देश की जनता को भरोसा दिलाया कि आप बेखौफ होकर त्योहार मनाएं, हम देश की सुरक्षा में तैनात हैं। ये वही जवान जिन्होंने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के वक्त मुंहतोड़ जवाब दिया था और आतंकवादियों के कई लॉन्च पैड तबाह किए। इस वक्त हम भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं और एक समय ऑक्ट्राई पोस्ट है यहाँ पर इस पर बॉर्डर में, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और यहाँ पर बीएसएफ के जो जवान हैं यहाँ मौजूद हैं। और इस समय यहाँ पर आप देख सकते हैं झंडे का जो है ध्वजारोहण किया जा रहा है आज गणतंत्र दिवस के मौके पर। इस समय जहाँ पर पूरे देश में इस दिवस को मनाया जा रहा है, ऐसे में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी इस समय देखिए जो है ध्वजारोहण किया गया है। और यहाँ पर बीएसएफ जो है अपने यहाँ पर जवानों के साथ यहाँ पर ये दिवस मना रही है। इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर जो झंडा फहराया गया उसमें से फूलों की वर्षा भी हो रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इस समय ध्वजारोहण हो चुका है। और ऐसे में ये वो पोस्ट है, ये कहीं ना कहीं भारत के बीएसएफ जो है भारत के एक शौर्य का प्रतिष्ठा है। भारत के बीएसएफ जो है फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस जिसे कहा जाता है वो यहाँ पर इस समय मौजूद है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर गणतंत्र दिवस की जो है यहाँ पर मनाया गया। और एक खास बात ये बीएसएफ ही है जो लगातार बॉर्डर पर पाकिस्तान का सामना करती है। जितनी भी घुसपैठ की कोशिशें होती हैं, जितनी भी यहाँ पर ड्रोन्स की मूवमेंट होती है, ऐसे में पाकिस्तान को सबसे पहले ही बीएसएफ से भिड़ना पड़ता है। और ये बॉर्डर की पोस्ट कई मायनों में अहम है। और आज यहाँ पर एक बार फिर से जो देखें गणतंत्र दिवस मनाया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इनके अफसर हैं वो वहाँ के इनके फौजियों से मिलते हुए और लगातार जो है ऐसे मौके कई बार देखे गए हैं। और इस समय हम लोग, मैं आपको फिर से बताऊं, इस समय बॉर्डर पर हैं, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा ऑक्ट्राई पोस्ट पर मौजूद हैं। और हमारे पीछे इस समय बीएसएफ के जवान गणतंत्र दिवस को यहाँ पर पूरे हर्षोल्लास से मना रहे हैं। कैमरामैन के साथ विकास, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से।